یہی میرا تعارف ہے، یہی میرا تعارف ہے، یہی میرا تعارف ہے، قضائے مصطفیٰ ہوں میں۔ دوستو اس وقت میں موجود ہوں مدینہ المنورہ کی سرزمین پہ، اور آج جس مسجد کی میں آپ کو زیارت کروانے والا ہوں اس مسجد کا نام ہے مسجد بلال۔ مسجد بلال مسجد نبوی سے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع ہے، اور یہ وہ مسجد بلال ہے جسے حضرت بلال حبشی مؤذن رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ والی چھوٹی سی مسجد، اس مسجد کا نام ہے مسجد سقیہ۔ مسجد سقیہ، اس مسجد والی جگہ پر ایک پانی کا کنواں ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا بیر سقیہ، اور وہ کنواں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کنویں پر تشریف لایا کرتے تھے، اس کنویں کا پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، آپ جانتے ہیں میدان کربلا سے فاحد مرد شخص غازی بن کر لوٹنے والے حضرت امام زین العابدین ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی مدینہ منورہ میں گزاری، یہیں پر انہوں نے دین و تبلیغ کا کام کیا۔ حضرت امام زین العابدین سے لوگ یہ پوچھا کرتے تھے کہ آپ مسکراتے نہیں ہیں، ہم نے آپ کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں میں کیسے مسکراؤں، میری آنکھوں کے سامنے ہر وقت کربلا کا منظر رہتا ہے۔ حج زبان آپ نے سیدھے ہاتھ کی طرف توجہ رکھنی ہے، چند پل کے لیے اس گھر کی زیارت آئے گی، گاڑی ہماری سلو ہو جائے گی۔ ابھی حج زبان یہ پرانا گھر ابھی آپ دیکھیں گے، یہ پرانا گھر جو آپ کو کچی مٹی سے بنا ہوا، ریت پتھروں سے بنا ہوا، اس پیٹرول پمپ کے پیچھے حج زبان یہ پرانا گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ اور ساتھ میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا محل بھی دکھائیں گے، جہاں پر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں مدینہ کے اندر مہمان یا مسافر آتے تو انہی کے پاس ٹھہرا کرتے۔ الٹے ہاتھ کی طرف لیفٹ ہینڈ کی طرف توجہ رکھیں گے، ابھی ایک مینار والی تاریخی مسجد آ رہی ہے، مسجد کا نام ہے مسجد عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی آپ کے الٹے ہاتھ پر یہ ایک مینار والی مسجد، یہاں پر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے، قرآن پاک کی تعلیمات دیا کرتے تھے۔ الٹے ہاتھ کی طرف یہ سب توجہ رکھیں گے، اب یہ خالی میدان آئے گا، خالی میدان کے اندر آپ کو ایک پیلے رنگ کی عمارت نظر آئے گی، اکیلی عمارت، وہ اب نیا تعمیر کیا گیا، اسے محل بھی کہتے ہیں اور قلعہ بھی کہتے ہیں۔ جو پرانا ٹوٹا ہوا بھی آپ کو ساتھ میں نظر آئے گا، اب یہ نیا تعمیر کیا گیا۔ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ابھی ایسا بنا آپ توجہ رکھیں گے، آپ کے الٹے ہاتھ پر یہ خالی میدان میں پیلے رنگ کی عمارت جو نظر آ رہی ہے، یہ ساتھ میں پرانا ٹوٹا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اب یہ نیا تعمیر کیا گیا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا محل ہے۔ ایسا بات دونوں ہاتھوں کی طرف توجہ رکھیں، ابھی ہم ایک نہر کے اوپر سے گزر رہے ہیں، یہ نہر کے اوپر سے گزر رہے ہیں جو خشک ہے، اسے وادی عقیق کہتے ہیں، وادی عقیق۔ وادی عقیق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، وادی عقیق۔ حج زبان اسی طرح آپ اپنے الٹے ہاتھ پر توجہ رکھیں نا، الٹے ہاتھ کی طرف یہ بڑا ایک پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف لیفٹ ہینڈ کی جانب، اس پہاڑ کا نام ہے جبل ایر۔ جبل ایر یہ جہنمی پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں دو باتیں ملتی ہیں، ایک بات یہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو اس پہاڑ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ نہ دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو ناپسند فرمایا، اور یہ مدینہ منورہ کی حدود سے باہر ہے۔ دوسری بات یہ ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے آتے ہیں، یہاں پر پہنچنے کے بعد کفار اس پہاڑ میں چھپ کر سازشیں کیا کرتے تھے اہل مدینہ کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور یہ پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا کرتا تھا، اور کافروں کی نقل و حرکت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا کرتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو ناپسند فرمایا۔ جو چند زیارتیں تھی ایسا بات دکھائی ہیں آپ کو، آج جو ہم نے بدر کی زیارت کرنی ہے، پہلے میں آپ کو ان کے نام بتاتا ہوں،
फिर इंशाअल्लाह उनके बारे में मालूमात दूंगा। सबसे पहले ज़ियारत हमने करनी है मदीना मुनव्वरा से बाहर निकलने के बाद बीर रूहा के कुएं की। बीर रूहा का कुआं वो कुआं है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे मुबारक शामिल फरमाया। दूसरी ज़ियारत हमने करनी है बीर शिफा के कुएं की। तीसरी ज़ियारत हम करेंगे शोहदाए बदर के कब्रिस्तान की। चौथी ज़ियारत हमारी होगी मैदान बदर जहां पर जंग हुई। पांचवी ज़ियारत होगी मस्जिद अरीश की। मस्जिद अरीश उस जगह पर बनाई गई है जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंग के दौरान खैमा लगाया गया। और छठी ज़ियारत हमारी होगी जबल मलाइका पहाड़। जबल मलाइका वो पहाड़ जहां पर फरिश्ते उतरे। ये 6 तारीखी मकामात की ज़ियारत है। इन्हीं के बीर रूहा के कुएं के बारे में मैंने आपको बताया। ये वो कुआं है जिस कुएं के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे मुबारक शामिल फरमाया। इस कुएं का पानी खारा था, कड़वा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे मुबारक शामिल फरमाया तो इस कुएं का पानी मीठा हो गया। इसी कुएं के पानी को शिफा वाला पानी भी कहते हैं। बीर रूहा के कुएं पर हम पहुंच चुके हैं। वादी रूहा में यह कुआं मौजूद है। वादी रूहा वो मुकद्दस वादी है जहां से 70 नबियों का अपने अपने जमाना में गुजर हुआ है। 70 नबियों का यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं जी। पानी भरे, पानी भरकर वापस गाड़ी में तशरीफ ले आएंगे। नाजरीन, रोहा नामी ये मुकद्दस मकाम मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर वाक़ है और मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक कदीम रोड पर मौजूद है। ये जगह मुसाफिरों के लिए मदीना मुनव्वरा से आगे पड़ाव करने के लिए दूसरी मंजिल थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी उम्रे का इरादा करते या किसी ग़ज़वे से वापस होते तो इसी जगह मंजिल किया करते थे। नाज़रीन, इस मकाम को वादी रोहा के नाम से जाना जाता है। ये वादी तकरीबन 25 मुरब्बा किलोमीटर तक फैली हुई है। इस वादी में एक मशहूर व मारूफ कुआं मौजूद है जिसे बेर रोहा कहा जाता है। रोहा नामी ये कुआं उन मुबारक कुओं में से एक है जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी नोश फरमाया था और जहां आपने और आपसे पहले आने वाले अंबियाए किराम ने नमाज अदा फरमाई थी। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह नमाज अदा फरमाई थी, आजकल उस मकाम पर नमाज पढ़ने के लिए छोटी सी मस्जिद नुमा जगह मौजूद है। बीर शिफा के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस कुएं के बारे में हदीस में या तारीख की किताबों में जिक्र नहीं मिलता है। लोगों ने इसका नाम बीर शिफा रखा है, वरना इसका असल नाम बीर तला है। बीर तला, वादी तला के अंदर ये कुआं मौजूद है। ये सामने आपको नजर आ रहा है कुआं। आपको मैं करीब से दिखाऊंगा अभी। आप देखिए मंजर पहले। ये दाएं बाएं सारी वादी है। इसका बुनियादी तौर पर नाम वादी तलहा है और इसके बारे में रवायत ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से गुजरते हुए इस कुएं के अंदर भी अपना लुआबे दहन डाला था। असल में ये कुआं बनाया गया था हुज्जाज कराम के लिए कि यहाँ से गुजरते हुए हुज्जाज कराम को पानी की सहूलत मैसर आ सके, लेकिन ये पानी भी खारी था, कड़वा था। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर क़याम भी फरमाया और यहाँ पर अपना लुआबे दहन इसमें डाला। जिसके बाद इस पानी के अंदर जो कड़वापन था वो ख़त्म हुआ और ये मीठा पानी बन गया और आज ये लोगों के लिए शिफा का ज़रिया है। हमारा अक़ीदा और हमारा ईमान है कि इस पानी की जो निस्बत है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो ये हर मर्ज़ के लिए शिफा है। आप ज़ियारत भी कीजिए और साथ साथ दुरूद पाक का नज़राना पेश करते रहिएगा। من مكة
قطع المدينة صلى صلاته حلت صفاته पुराने जमाने की बस्ती बनी हुई है। इसे वादी अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। इस जगह का नाम तो खैफुल खुजामी है, वादी खैफुल खुजामी, लेकिन ये बस्ती की वजह से मशहूर है। कहा जाता है कि इस पुरानी बस्ती में हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कबीले के लोग रहा करते थे। ये थोड़ा सा आगे जाकर आई साहबान आपके सीधे हाथ की तरफ होगी। जनाब अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का शुमार उन चंद शख्सियात में होता है जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी होने का शरफ भी हासिल हुआ, और फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मौला अली अलैहिस्सलाम से वफादारी निभाकर इस शरफ का हक भी अदा किया। इस्लाम की इब्तदाई तारीख अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत का मुताला किए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। हस्तियां तू रोजा नबीदा करके सितम है लोगां छुड़ाया। हस्तियां तू रोजा नबीदा करके सितम है लोगां छुड़ाया। हाय एक रोंदा टुरिया वो हजरत अबू ज़र, दूजा रोंदा टुरिया सैयदा दा जाया। हाय एक रोंदा टुरिया वो हजरत अबू ज़र, दूजा रोंदा टुरिया सैयदा दा जाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा बात तवज्जो फरमाएं जी, आपके सीधे हाथ पर जो ये रेत का बड़ा पहाड़ देख रहे हैं ये जबल मलाइका है। ये उल्टे हाथ पर भी सीधे हाथ पर ये दोनों पहाड़ एक ही थे, अब दरमियान से सड़क गुजरी है वो अलग अलग हो गए। ऐ फरिश्तों वो सुल्तान मेराज है, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी, चेहरा कुरान सारा नजर आएगा, मेरे आका इमामे सफे अंबिया, नाम पे उनके लाजिम है सल्ले अला। खड़ा होना है, सलाम पेश करना है। अस्सलामु अलैका या अहलल कबूर, अस्सलामु अलैका या शुहदाउल बदर, अस्सलामु अलैका या अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी उम्मत की वो थी पहचान अस्हाबे बदर, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। इब्तिदाए मारकाए हक़ के वो अहले जुनू बन गए उम्मत की खातिर साबिक़ून अल-अव्वलून, करके अपनी जिंदगी कुर्बान अस्हाबे बदर। बाग़बाने गुलशन ईमान अस्हाबे बदर, मेरी उम्मत की वो थी पहचान अस्हाबे बदर, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अस्हाबे बदर, अस्हाबे बदर। तो मैं अर्ज कर रहा था उस काफले में तकरीबन मक्का का हर घर अपना हिस्सा अदा करता है। उस काफले के साथ 40 लोग थे। उस काफले की मालियत तकरीबन 50,000 दिनार की मालियत का वो काफला था।
उस काफले की क़यादत हजरत अबू सुफियान करते हैं। हज साहबान ये बात ज़हन में रखिएगा, याद रखिएगा कि जंग बदर के मौके पर हजरत अबू सुफियान मुसलमान नहीं होते, सहाबी रसूल नहीं होते, लेकिन वो बाद में कलमा पढ़कर सहाबी रसूल बनते हैं। हमारे लिए ये जरूरी है जो भी सहाबी रसूल हो उनका नाम अदब व एहतराम के साथ लिया जाए। मेरी इस गुफ्तगू में हजरत अबू सुफियान का भी जिक्र आएगा तो तमाम लोगों ने उनका नाम अदब व एहतराम के साथ अपने दिल में तसव्वुर करना है। और ये भी जरूर याद रखेंगे कि जंग बदर के मौके पर वो मुसलमान नहीं थे। हजरत अबू सुफियान की क़यादत में ये काफला मक्का से मुल्क शाम की तरफ रवाना हुआ। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके काफले की रवानगी की इत्तला मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को मस्जिद नबवी में इकट्ठा फरमाते हैं, अपने सहाबा से मशवरा फरमाते और फरमाते हैं कि मुमकिन है हम उस काफले को रोके और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उस काफले का माल गनीमत के तौर पर अता करे। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही बेहतर जानता है, आप हमें जो हुक्म फरमाएंगे हम उसे पूरा करेंगे। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर मदीना से बदर की तरफ रवाना होते हैं। जब सहाबा को मदीना से लेकर रवाना होते हैं, मशहूर कौल के मुताबिक 313 सहाबा थे, मशहूर कौल के मुताबिक, वरना बाज़ उलमा ने 315 और 317 सहाबा का भी जिक्र किताबों में लिखा है। सहाबा के साथ 70 ऊंट थे, 2 घोड़े थे, 8 या 6 तलवारें थी, खाने पीने का साजो सामान भी मुख्तसर सा लेकर, जंगी साजो सामान भी मुख्तसर सा लेकर मदीना से बदर की तरफ रवानगी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की तरफ ही रवाना होते हैं। दूसरी तरफ हजरत अबू सुफियान जो मुल्क शाम तिजारत करने के लिए गए होते हैं, तिजारत करके वापस आ रहे होते हैं। हजरत अबू सुफियान ये बात जानते थे कि हमारे काफिले की इत्तला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर मिली होगी और वो हमारे काफिले के पीछे जरूर आएंगे। मुल्क शाम से वापसी पर बदर पहुंचने से पहले हजरत अबू सुफियान अपने काफिले से जुदा होते हैं और मदीना मुनव्वरा के रास्ते पर निकलते हैं, ये जानने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके काफिले के पीछे हैं या नहीं। मदीना मुनव्वरा के रास्ते पर निकलने के बाद कुछ सफर करने के बाद एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें ऊंट की लीद मेंगड़े मिलती है। हजरत अबू सुफियान उसे लकड़ी के साथ तोड़कर देखते हैं तो उसके अंदर से खजूर की गुठलियां निकलती है। हजरत अबू सुफियान ये बात कहते हैं, ये यसरब की खजूर की गुठलियां हैं। यसरब मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम है। ये यसरब की खजूर की गुठलियां हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे काफिले के पीछे हैं, मदीना वाले हमारे पीछे हैं। तारीख की किताबों में लिखा मिलता है कि उस जमाना में सबसे ज्यादा खजूरें मदीना मुनव्वरा में हुआ करती थी और मदीना मुनव्वरा के लोग ही अपने जानवरों को, अपने ऊंटों को खजूरें खिलाया करते थे। तो इस बात से हजरत अबू सुफियान ने अंदाजा लगा लिया था। हजरत अबू सुफियान वापस जाकर अपने काफिले को मिलते हैं और एक कासिद को तेज तरीन सवारी देकर मक्का की तरफ रवाना करते हैं। ये कहकर कासिद को रवाना करते हैं कि मक्का वालों को जाकर बता दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके काफिले के पीछे हैं, वो आकर अपने काफिले की हिफाजत करें। कासिद मक्का मुकरमा पहुंचकर अबू जहल को मिलता है, अबू जहल को जाकर बताता है। अबू जहल मक्का में ऐलान करता है, लोगों को इकट्ठा करता है। 1300 अफराद का लश्कर, 1300 लोगों का लश्कर अबू जहल तैयार करता है। अबू जहल के लश्कर के साथ तकरीबन 900 ऊंट थे, 100 घोड़े थे, 800 या 700 के करीब तलवारें थी, नेज़े, बर्छे, तीर, कमान, खाने पीने का साजो सामान भी वाफिर मिकदार में लेकर, नाच गाने के लिए औरतें, शराबें साथ में लेकर पूरी जंग की तैयारी करके अबू जहल मक्का से बदर की तरफ रवाना होता है। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सफर में रवाना होते हैं। रास्ते में एक जगह आती है वादी सफरा। वादी सफरा में पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों के मक्का से रवानगी की इत्तला मिलती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत वही के जरिए फरमाता है कि अन करीब हम आपको 2 काफिलों, 2 जमातों में से एक पर फतह देंगे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबा से मशवरा फरमाए। वादी सफरा में ठहर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा अपने साहबा से मशवरा फरमाते हैं, क्योंकि जब पहले मदीना से साहबा को लेकर रवाना होते हैं तो उस वक्त एक तिजारती काफले को रोकना था। उस काफले के साथ 40 लोग थे। अगर काफले वालों से जंग होती तो साहबा आसानी से जीत जाते, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई थी। सामने एक बड़ा लश्कर था जिससे मुमकिन था जंग होना थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी सफरा में ठहर कर साहबा से दोबारा मशवरा फरमाते हैं, पूछते हैं क्या किया जाए। तो तमाम साहबा एक ही बात अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आगे जाएंगे, आगे जाकर काफिरों के साथ जुर्रत और बहादुरी के साथ मुकाबला करेंगे, या हम शहीद हो जाएंगे या काफिरों को कत्ल कर देंगे। इसी मौके पर हजरत मिकदाद बिन असवद रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कौम मूसा नहीं है, कौम बनी इसराइल नहीं है। जैसे कौम बनी इसराइल पर मुश्किल वक्त आया जब फिरौन उनके पीछे निकला था, तो दरियाए नील के किनारे बनी इसराइल वाले अपने नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि तुमने हमें हलाक करा दिया, अब जाओ तुम और तुम्हारा रब इनसे जाकर जंग करे, तुम जीत जाओ तो हमारे पास लौट आना। हम कौम बनी इसराइल के मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करेंगे कि आप और आपका रब हमारे साथ मिलकर इन काफिरों से जहाद और कताल करें, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चलो बदर की तरफ ही चलते हैं। दूसरी तरफ हजरत अबू सुफियान भी एक और काम करते हैं, वो अपने काफले को बदर के रास्ते से हटाकर दूसरे रास्ते से मक्का की तरफ रवाना रखते हैं, जिससे हजरत अबू सुफियान का काफला बचकर निकलने में कामयाब रहता है। और इस जंग में हजरत अबू सुफियान की शिरकत भी नहीं होती। हजरत अबू सुफियान का काफला रास्ते में अबू जाहल के लश्कर को मिलता है और जाकर कहता है कि हमारा काफला बचकर निकलने में कामयाब रहा, अब जंग की लड़ाई की जरूरत नहीं है, तुम वापस लौट चलो। लेकिन अबू जाहल ये कहकर इनकार कर देता है कि जब तक मैं मैदान बदर में पहुंचकर 3 दिन तक जश्न न मना लूं, मैं वापस नहीं लौटूंगा। अबू जाहल के लश्कर में से 300 लोग वापस जाने पर राजी हो जाते हैं। बकिया 1000 का लश्कर लेकर अबू जाहल मैदान बदर की तरफ बढ़ता है। मैदान बदर की जमीन उस वक्त 2 तरह की थी, एक रेत वाली कच्ची जमीन का हिस्सा था और एक पक्की जमीन का हिस्सा था। अबू जाहल मैदान बदर में पहले पहुंचता है तो अपने लश्कर को पक्की जमीन पर ठहराता है, ये कह करके यह मुनासिब जमीन है, यहाँ से हमला करने में, जंग करने में आसानी होगी। वहीं पर पानी का एक कुआं भी होता है जिसे अबू जहल अपने कब्जा में करता है। दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर मैदान बदर में पहुंचते हैं तो सहाबा के हिस्से में आने वाली जमीन रेत वाली कच्ची जमीन थी। रेत वाली जमीन पर ठहरना, जंग करना मुश्किल होता है, लेकिन सहाबा भी पुख्ता ईमान वाले सहाबा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से अपने लश्कर को रेत वाली कच्ची जमीन पर ही ठहराया। 17 रमजानुल मुबारक जुम्मे का दिन था, जंग का दिन था। सन 2 हिजरी, यह जंग हिजरत के 2 साल बाद पेश आई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। मदीना तशरीफ लाने के 2 साल बाद ये जंग पेश आई। जंग बदर के मौके पर सरकार मक्का मुकरमा सरदार मदीना मुनव्वरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस मकाम पर साहिबान के नीचे तशरीफ फरमा थे, बाद में इसी मकाम पर एक अजीमुशान मस्जिद की तामीर की गई जिसका नाम मस्जिद आरीश है। अरबी जबान में आरीश साहिबान को कहते हैं। चुनाचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहिबान की निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद आरीश कहा जाने वो धूपों में
تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے، وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے، وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو، میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو، میں تو علی کے ساتھ ہوں، میں تو علی کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ حیدر مولا علی 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 مولا، 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 پنج نارا پنج تنی سوا لکھ نارا حیدر، حیدر مولا علی 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 مولا، حیدر مولا علی 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 مولا، سیف ناد علی جو آ گیا میری زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر، منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ سکے، نام علی جو لکھا ہے میرے مکان پر، حیدر مولا علی 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 مولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دلچسپی لی، جب حضور جتنا عرصہ تک مکہ شریف میں تشریف فرماتے تو زیادہ وقت مسجد الحرام میں گزارتے، اور جب کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب دو عالم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو حضور نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، کوئی ایک حجرہ نہیں ابھی بنایا، ابھی یہ طے نہیں کیا کہ میں نے مدینہ کے کس حصے میں اپنا مکان بنانا ہے، کہاں رکنا ہے، سب سے پہلے مسجد شریف کی تعمیر فرمائی اور بنفس نفیس فرمائی، وہ مسجد مکمل ہو گئی، سرکار کا قیام تھا جناب ابو ایوب انصاری کے گھر میں، تھوڑے سے فاصلے پر نظر پڑی تو ایک کھلا میدان موجود تھا، 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، فرمایا یہ زمین مجھے دے دو، اس میں مسجد بناؤں گا، ان 2 یتیم بچوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھ لیں مسجد بنا لیں، فرمایا یوں نہیں بھائی پیسے دیں گے، اسلام یہ نہیں کرتا کہ بندے کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈال دیا جائے، وہ یتیم بچے ہیں، ابھی ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہیں مال کمانے کے، تو فرمایا تمہیں پیسے ملیں گے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی جیسے مالداروں کے ذمے لگایا گیا کہ انہیں رقم ادا کی جائے، وہ پیسے ان بچوں کو دیے، یہاں مسجد کی تعمیر شروع کی، اب چونکہ مسجد قباء بھی سرکار نے بنائی تھی تو ایسا نہیں فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام ہر ہفتے یا گھوڑے پر بیٹھتے یا اونٹنی پر بیٹھتے یا پیدل سفر کرتے، اور ہر ہفتے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد قباء تشریف لے جاتے، اس مسجد کی آباد کاری میں حضور دلچسپی لیتے، شوق تھا سرکار کو، اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس مسجد کے آباد کرنے میں ایک اور فضیلت بیان کی، فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بدر میں بری طرح شکست کے بعد مکہ کے کافروں نے 3000 لوگوں کی فوج تیار کی اور مسلمانوں پر حملے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں نے بھی مدینہ کے ڈیفنس کے لیے
1000 सहाबा की फ़ौज तैयार की। अब फिर वही बदर वाला सिस्टम था कि काफिरों की फ़ौज मुसलमानों से 3 गुना ज़्यादा थी। Not a big deal, right? Yes. But इस बार मक्का वालों की फ़ौज में एक यंग और टैलेंटेड लड़का और भी था जिसका नाम था खालिद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर रहकर लड़ाई करने का मशवरा दिया, लेकिन ज़्यादा सहाबा ने कहा कि मदीना से निकलकर ओपन डेजर्ट में लड़ाई करनी चाहिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय छोड़कर मेजॉरिटी की राय मानी और मदीना से 1000 सहाबा लड़ाई के लिए रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, मुहाजिरीन, औस और खजरज। 1000 सहाबा में से सिर्फ 100 के पास बॉडी आर्मर और शील्ड्स वगैरह थे और सिर्फ 50 घोड़े थे। इसके मुकाबले में 3000 मक्का की फौज आकर ओहद के मकाम पर रुकी और मुसलमानों का इंतजार करने लगी। इस फौज के सेंटर को अबू जहल के बाद मक्का का नया सरदार अबू सुफियान लीड कर रहा था। उनके लेफ्ट साइड पर अबू जहल का बेटा इक्रमा और राइट साइड पर 33 ईयर ओल्ड खालिद बिन वलीद घोड़ों के साथ लीड कर रहा था। मक्का के 3000 फौजियों से लड़ने के लिए जब 1000 सहाबा ओहद पहुंचे, अब्दुल्ला बिन उबई सबसे बड़ा मुनाफिक ने कहा कि हम तो नहीं लड़ेंगे भाई, ये तो खुदकशी है। अब्दुल्ला बिन उबई और उसके 300 साथी मुसलमानों की फौज से अलग हो गए। ये एक प्री प्लान्ड साजिश थी या जो भी था। अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए और उनके सामने 3000 की फौज खड़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर्स तीरंदाज इस पहाड़ के ऊपर भेजे ताकि मक्का वाले पहाड़ के पीछे से हमला ना कर सके, और इन 50 लोगों को क्लियर ऑर्डर दे दिया कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत चुके तुमने पहाड़ से नहीं उतरना, और अगर तुम देखो कि मुसलमान हार गए हैं और परिंदे इनके जिस्मों के का गोश्त खा रहे हैं, तब भी तुमने अपनी जगह से नहीं हिलना। काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया। हजरत अली ने जाके उसको, फिर उसका भाई सामने आया और हजरत हमजा ने उसको भी ख़त्म कर दिया। फिर वहाँ से आते गए और मुसलमान सारों को मारते रहे। इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दिया। पहले लड़ाई थोड़ी सख्त हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सहाबा उनको क्रश करते गए और मक्का वाले हौसला हारने लगे और थोड़ी सी लड़ाई के बाद बदर की तरह मैदान से भागने लगे। क्लियरली ये लग रहा था कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं। इसीलिए पहाड़ पर खड़े 50 आर्चर्स में से 41 जीत की एक्साइटमेंट में पहाड़ छोड़कर माल इकट्ठा करने के लिए नीचे उतर गए और पहाड़ के ऊपर सिर्फ 9 तीरंदाज रह गए और एग्जैक्ट इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे। जैसे ही वो नीचे उतरे, खालिद अपने घुड़सवारों को लेकर पहाड़ के पीछे से लाइटनिंग स्पीड के साथ बढ़े। अब द गेम वॉज कम्प्लीटली चेंज्ड। मुसलमान जीती हुई जंग के बजाय 2 फौजों के दरमियान में फंस गए थे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे और मुसलमानों के मेन जनरल हजरत हमजा को एक हबशी गुलाम वाहशी ने शहीद कर दिया। एंड टू मेक इट इवन वर्स, दोनों फौजों से लड़ने के दौरान वहाँ एक अफवाह फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद कर दिया गया। और ये अफवाह इसलिए फैली कि जब खालिद बिन वलीद पहाड़ के पीछे से हमला कर रहे थे तो उनके एक ग्रुप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर हमला कर दिया और उस टाइम वहाँ पर रसूलुल्लाह की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 9 लोग मौजूद थे। लड़ाई यहाँ तक गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत शहीद हुआ, लेकिन हज़रत तलहा और बाकी सहाबा ने उनको बचाए रखा। 9 डिफेंडर्स में से 7 जब शहीद हुए तो काफिरों को लगा कि उन्होंने रसूलुल्लाह को भी शहीद कर दिया, क्योंकि उन्होंने मसअब बिन उमैर को शहीद किया था, जिनकी सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। इतने में मुसलमानों की फौज किसी तरह वहाँ से निकल कर पीछे हटी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करके पहाड़ के ऊपर ले गई और पहाड़ के ऊपर दोबारा फॉर्मेशन बनाई और लड़ाई के लिए बिल्कुल रेडी हो गई। मक्का वालों के घोड़े पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते थे और बगैर घोड़ों की उनकी स्पीड बहुत स्लो होती और मुसलमान इन पर बहुत तीर बरसाते। तो अबू सुफियान ने फैसला किया कि बस इतना काफ़ी है,